Good morning, dear students. In today's lecture, we will explain very important part and the last session of our chapter. But last session is not too small. It will take minimum 12 to 13 lectures. But I have remembered an important thing that to share with the memories with you all. That this chapter is very important chapter for physics, 12th physics, because all these questions and the answers you will study these important points in 12th also. So students, be aware about this important point. That's why I am taking too much time about this chapter, because this chapter is very important for NEET JEE, and this is very important for your 12th physics also. And all the physical chemistry is purely depends upon this chapter. So we have to be very serious in this chapter. Okay. Now the next question is about this quantum atomic model is de Broglie principle and the dual behavior of matter. Dual behavior of matter. Now we will explain this important thing. Just see. So the first important point of de Broglie principle is here. Just see. If lights, which is known as electromagnetic waves, if light having particle nature, then electron, proton, neutron are particles, so it has wave nature. देखिए अभी मैं क्या आपको समझा रहा हूं. अगर लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर है. लाइट जो पहले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर प्रूव हो सकता है कि इस वेव्स के पास पार्टिकल नेचर है, तो जिसके पास पहले से पार्टिकल नेचर है उसके पास वेव नेचर होना चाहिए. समझते हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं. लाइट which is known as electromagnetic waves, it is proved that light has particle nature. So if electron, proton, neutron having particle natures, so they have wave nature also. So ये हमें प्रूव करना है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के पास पार्टिकल नेचर है, और ये हम प्रूव करेंगे with the help of de Broglie principle. What is de Broglie principle? Just see. Each and every particles having wave natures, and this type of waves are known as matter wave. Each and every particles having wave natures, and this type of waves are known as matter wave. And the formula for matter wave is here. Just see. Now about the formula
formula of meter is lambda is equal to h upon mv, where m is equal to mass, v is equal to velocity, h is equal to Planck's constant, lambda is equal to wavelength. Now the most important part that we will discuss, that how can we prove this equation, and according to this equation how can we prove this statement that each and every particles having wave nature. Now we will explain this important topic. Okay, just see. According to theory of relativity, आप सबको उसकी फॉर्मूला शायद मालूम होगी. E is equal to mc square. It is theory of relativity. अब सबको मैं एक एग्जांपल बताऊं. एक्चुअल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस क्या है देखिए. चलिए, ये यहां पर एक डबल डेकर बस है. मैं गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं रेकड़ी नहीं है भाई, रेकड़ी नहीं है, पर ये क्या है, बस है. चलिए देखते हैं. ये बस यहाँ पर है राजकोट और यहाँ पर है जूनागढ़. चलिए, इसका डिस्टेंस है दोनों के बीच का, हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 100 किलोमीटर. ओके, राजकोट से जूनागढ़ का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है. अभी ये बस सोचिए यहाँ से चल रही है, ठीक है, बस यहाँ से चल रही है. अगर समझ लीजिए कि बस एक घंटे में बस यहाँ पर पहुंच जाती है राजकोट से जूनागढ़, 1 आवर में, मीन 60 मिनट में पहुंच जाती है, तो बस की स्पीड क्या रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, तो आप बोलेंगे 100 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड रहेगी ना. 1 घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कट कर लिया, तो मेरा क्वेश्चन गलत था और आपका आंसर भी गलत है. अगर आपने 100 किलोमीटर पर आवर सोचा होगा तो उसे स्पीड नहीं बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं. एवरेज स्पीड समझ लीजिए, मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि बस की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर स्पीड ही 100 है, उसका मतलब क्या, बस स्टार्ट की, जैसे ही पहला गियर हमने लगा दिया सीधी 100 की स्पीड. और कहाँ पर स्पीड ब्रेकर आता है तो भी 100. अगर उसे जेतपुर बस स्टॉप में जाना है तो 100 to 100 अंदर जाएगी, 100 to 100 बाहर निकलेगी. अगर किसी पैसेंजर को फेंकना है तो सीधा कूदना ही पड़ेगा ना. ये फनी सीन प्रिपेयर हो रहा है ना यहाँ पर. ये कोई गोलमाल फिल्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, पर गोलमाल फिल्म में ऐसा हो भी सकता है. पर देखिए क्या हो रहा है अभी, 100 किलोमीटर की अगर स्पीड होगी तो राजकोट से जूनागढ़ जब बस पहुंचेगी तब कभी भी बस रुकेगी नहीं, कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी. अगर टोल बूथ आता है तो टोल बूथ भी गया, लास्ट में भले ही उसका टायर ही पहुंचे, कुछ पहुंचे कि ना पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता ना. इसका मतलब वो एवरेज स्पीड होती है. कभी ट्रैफिक होता है तो बस स्टॉप भी हो जाती है, कभी आगे भी बढ़ जाती है, धीरे भी बढ़ती है, कभी 150 भी आ जाएगी, तभी उसकी एवरेज 100 किलोमीटर पर आवर निकलेगी. अभी देखिए, समझ लीजिए कि मैं बस की जो एवरेज स्पीड है वो 200 किलोमीटर कर देता हूँ, 200, तो बस कितनी देर में पहुंचेगी, 200 कर दूंगा तो आप समझेंगे ना 30 मिनट्स में. पक्की बात है ना. स्पीड डबल तो ये कम हो गई नहीं, टाइमिंग से आधा हो जाएगा. अगर मैं उसकी स्पीड 400 कर देता हूं, चलिए, तो 15 मिनट. समझ लीजिए अगर मैं इसकी स्पीड 800 कर देता हूं तो 7.5 मिनट. आप समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है, बट ये इमेजिन कीजिए, वी आर साइंस स्टूडेंट्स, सब कुछ इमेजिन करना है. 800 की स्पीड में अगर बस चल रही हो तो क्या हमारी पोजीशन होगी, थोड़ी सोच लीजिए. 1600 अगर ये हो गई तो समझ लीजिए कि 3.5 मिनट में हम चलते हैं. अभी थोड़ा माइनर डिफरेंस को अभी निकाल देते हैं.
अगर उसकी स्पीड 3200 हो गई तो 1.5 मिनट मतलब 75 सेकंड हो गया। 6400 हो गया तो 37.5 सेकंड में भी आगे चले गए। 12800 हो गया तो उसका भी डबल, इसका भी आधा हो जाएगा, इसको भी हम समझ लेते 18 सेकंड, चलिए ले लेते 18.5 समथिंग निकाल देते। भाई इसकी स्पीड 25000 हो गई तो 9 सेकंड, 50000 हो गई तो 4.5 सेकंड, 1 लाख हो गई तो 2 सेकंड, 2 लाख हो गई तो 1 सेकंड। तो 2 लाख की स्पीड से अगर बस जाए तो अगर ऐसे हम ऐसे देखेंगे ना तो सीधा जूनागढ़ आ जाएगा। अगर ऐसे देखेंगे सीधा जूनागढ़। अभी 3 लाख, चलिए तो अभी 0 सेकंड में थियरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस यहाँ था कि अगर 0 टाइम पर हम जाना चाहते हैं, इफ वी वांट टू गो इन अ पास्ट, अगर हम पास्ट में जाना चाहते हैं तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस वहां पर खड़ा हुआ है। यह थियरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि ये 0 सेकंड में हम कैसे जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतनी सारी स्पीड नहीं हो सकती, बट आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, c, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 into 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड इन वेलोसिटी ऑफ लाइट c। हम जो mc² में जो c लगते हैं यहाँ पर वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। तो देखिए लाइट के जो वेव्स है उसे जूनागढ़ पहुंचना हो तो कितनी देर लगेगी, वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कट कर सकते हैं। 0.00 में टाइमिंग चला जाएगा। दिस इज थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ये उसका बेस मैंने आपको किया। थोड़ा गोलमाल पिक्चर में हम आ गए थे बट इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके चलिए, तो E = mc² हमारे पास यहाँ पर है। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो आई थिंक सो किसी को इश्यू नहीं होगा। c² को मैंने c × c कर दिया, ठीक है। अभी ये क्या हुआ देखिए, ये है मास और ये है वेलोसिटी। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मोमेंटम P = mv, मास इनटू वेलोसिटी = मोमेंटम हो जाता है। तो mc, c वेलोसिटी ही है ना, वो लाइट की वेलोसिटी है, मतलब कोई इसमें इश्यू नहीं हो सकता। m × c की जगह हम p ले सकते हैं। सो E = P × c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहां पर आ गया। दूसरी बात हम वो भी जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। अगेन अल्बर्ट आइंस्टाइन, E = hc/λ। We know this equation. E = hc/λ. This is equation number 2. Okay. Now on the third stage, if we will compare equation number 1 and 2, तो यहां पर क्या रहा, P × c = hc/λ। P × c = hc/λ रहा यहाँ पर। c कैंसिल कर दिया। चलिए तो क्या यहाँ पर आ गया, लेमड़ा h/p समझ सकते हैं ना, लेमड़ा यहाँ पर आ गया, p नीचे गया, लेमड़ा h/p। और p क्या है, p = mv। सो यहां पर हमारा इक्वेशन आ गया, लेमड़ा = h/mv। So we can prove this equation with the help of Albert Einstein's two important equation, theory of relativity and E = hc/λ, and we can easily prove lambda = h/mv। But हमारे सामने यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है। कौन सा क्वेश्चन खड़ा होता है, ये हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि लैम्बडा = h/mv, इससे कैसे प्रूफ होगा। लैम्बडा = h/mv से ये कैसे प्रूफ होगा कि एवरी पार्टिकल्स हैविंग वेव नेचर। चलिए तो उसके बारे में हम बात करते हैं इस इक्वेशन से। जस्ट सी कैसे वेव नेचर प्रूफ होता है। देखिए, हेवी वेट और हेवी मास substances
like aeroplane, running person, or cricket ball, heavy mass, this type of substances, these are the examples. देखिए ये सब का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी देखिएगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, तो उसका मतलब क्या हुआ, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम, 1 यहाँ पर लेमडा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एम। सो ये वेवलेंथ और ये मास दोनों इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब ये हो सकता है यहाँ पर कि मास लो देन वेवलेंथ हाई, और मास हो गया हाई, वेवलेंथ हो गया यहाँ पर लो। अगर ये जो इनवर्स पर है तो कम मास रहेगा तो वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, और मास ज्यादा रहेगा तो वेवलेंथ कम रहेगी। तो देखिए heavy mass substances like as aeroplane, running person and cricket ball having higher mass, that's why its wavelength is very low, so it is not possible for the measurement of heavy substances experimentally। देखिए ये जो सब्सटेंसेस है हेवी सब्सटेंसेस, उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम आ जाती है। समझ लीजिए कि एरोप्लेन का जो मास है वो तो टन में रहेगा, तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी हो जाएगी, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट ही नहीं कर पाएंगे। और जिसको मेजरमेंट ही नहीं कर पाते हैं तो उसकी वेवलेंथ ही नहीं मेजरमेंट होती, तो उसका वेव नेचर भी नहीं मेजर हो सकता। और समझ लीजिए लाइट पार्टिकल्स, low weight particles are, while electron, proton, neutron having lower mass, so it is possible to measure wavelength of such type of particles, so it has wave nature। समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास काफी लो है। अगर इसका मास लो रहेगा तो इसकी वेवलेंथ हाई रहेगी, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ मेजरमेंट की जा सकती है। अगर वेवलेंथ मेजरमेंट की जा सकती है तो उसका नेचर वेव नेचर ही होगा, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ मेजर की जाए उसका नेचर वही रहेगा। इससे प्रूफ हो जाता है कि ईच एंड एवरी पार्टिकल्स हैविंग वेव नेचर, particles like as electron, proton, neutron or hydrogen having wave nature. So it is proved with the help of the Broglie dual nature or matter wave principle, we can say that each and every low weight particle having wavelength, if it has wavelength, then we can easily prove the wave nature of this type of substances, this type of particles. So this is the Broglie dual behavior matter principle is here. Clear? शायद आप सबको ये पूरा प्रिंसिपल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, बट एक बार मैं फिर से ये जो पॉइंट्स है वो आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि उसका प्रॉब्लम आपको बहुत ही इसमें कम आ जाए। पूरा रिवीजन करके
हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो लाइट पार्टिकल्स का हमने देखा, प्रिंसिपल क्या है, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स हैविंग वेव नेचर, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सेकेंड पार्ट में हमने देख रहे हैं ई इज इक्वल टू पी सी, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरिजन के बाद लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी प्रूव होता है। उससे ये लास्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मास और वेवलेंथ दोनों इनवर्स में है। मास छोटा है तो वेवलेंथ बड़ी रहेगी, मास बड़ा है तो वेवलेंथ छोटी रहेगी। तो बड़े मास वाले सब्सटेंसेस को ये प्रिंसिपल कंसल्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ उतनी शॉर्टर मिलेगी कि वो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ही नहीं की जा सकती। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम बोल सकते हैं कि उसकी मेजरमेंट वेवलेंथ की जा सकती है क्योंकि उसका वेव नेचर प्रूफ हो सकता है, उसका वेवलेंथ, उसका मास लो होता है ताकि वेवलेंथ ज़्यादा यहाँ पर मिलती है, इसीलिए ये सब पॉसिबल है। अभी उसके न्यूमेरिकल हम आगे पढ़ेंगे, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में भी ये प्रूफ नहीं दिया हुआ है, बट हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वरना ये हमें क्रेम करना पड़ेगा, उसके अलावा ये क्रेम ना करना पड़े, इसीलिए मैंने आप सबको ये शॉर्टकट ट्रिक्स दे दी। ओके, सो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, अभी आपको यही होमवर्क करने में यही पीडीएफ आप सबको भेज दूंगा।